Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. We are previewing the India versus Bangladesh series, and Bangladesh is coming after a big high. And we are really excited for this Test series to start on 19 September. The first Test is in Chennai, and Bangladesh will also get some advantage of a turning venue, I think, in both the venues because historically we have seen some turn in Chennai as well as some turn in Kanpur. So Taijul Islam and Mehdi Hassan and Shakib Al Hassan all will be really excited for their prospects in this series. So will be Ashwin, Jadeja, and Kuldeep Yadav from Indian side. There are a lot of debates going on Indian team selection, but a shocking decision has been made by Bangladesh team that they have chosen to replace Shoriful Islam with not a bowler but Jakir Ali, who is a batsman and a keeper batsman who has not even made his ODI debut or Test debut, but has only played 17 T20Is. He has come into the Test squad now. So I'm really excited about the dynamics that Bangladesh is bringing to this series. And yes, Pratik, will be interesting to preview this series now. So Yeah, waiting for your stats and comments on this. yeah, Shikhar, definitely. I think we are the first channels, one of the first channels who are putting this preview this early because I'm really excited about this test series. People are excited Hmm. because they are counting. Okay, BGT is coming soon. This series, New Zealand series, then BGT. But for me, this series itself will be cracking series, and I am predicting very very shocking thing right away. 1-1. Bangladesh will make history in India. 1-1. This is my prediction, and Oh, and I think with KL Rahul and Shubman Gill, it is bound to happen that India lose a test match because these two are such big losers yeah. that they lose every match. They even lost India A. They made India A lose, who is now the team now which is winning with Pratham Singh, an unknown player, is scoring centuries. But useless KL and Gill can't even make a strong India A team win versus India B team. So it is bound to happen that we lose one test. So Pratik, I am with you. I am also predicting 1-1. Yeah, Actually, it would have been 1-1 if not for Bumrah, yeah, Ashwin and Jadeja playing. Because I even leave aside Ashwin and Jadeja, I think just Bumrah can change the match and dynamic so many times in yeah. a single test match. Like we saw in the baseball series, he got the wicket of Root and Pope and all these players there in whenever needed. So Mm, that's why I am thinking it will be 2-0. But yeah, if Bumrah is rested for one test match also, I mm, think that test match Bangladesh can win and it yeah. will be 1-1. If it is 1-1, this will be one of the best series then. Like, actually, for cricket, it will be a huge win if it is 1-1. So let's see Hmm. if Bangladesh can continue the good performance from Pakistan. I also have some Hmm. stats prepared, Shikhar, so I want to share a slide. Let Hmm. me let me share that. Yeah. But do you think Mushfiqur Rahman and Zakir Hassan, all these guys can put up a fight in India versus? I think Ashwin is coming after a long time. And why Ashwin and Jadeja didn't play Dulip Trophy? They should have got into some kind of rhythm. Yeah. Playing a test match directly. I know it's Ashwin's home ground in Chennai, but still playing a Mm, because I think our bowling is dependent on these two only. And if Kuldeep Yadav, I think they will play Kuldeep Yadav instead of Akshar Patel because at least Kuldeep has had some match practice. mm. And they may be dropping Akshar Patel to because they have to play Rishabh Pant and KL Rahul now. But doesn't Uh, Akshar qualify as just as a batter to play in this team? Of course he does, but this is the Indian team. No, they will never select an outsider like that. Yeah. They want to do go by conventional roles. Oh, अक्सर तो all-rounder है. All-rounder को क्यों खिलाना है? Already we have three spinners and two fast bowlers, and Jadeja and Ashwin are all-rounders. तो क्यों खिलाना है अक्षर पटेल को? But as per logical Mm. thinking, of course, Akshar does qualify to play as a pure batsman in front of KL Rahul. लेकिन केएल राहुल का जो बायसनेस है जो मतलब लोगों का उसने चाटा हुआ है ना Mm. सिलेक्टर्स से लेके सबका जो उसने चार्ट के रखा हुआ है तो उसको तो अब क्विड प्रो को करना पड़ेगा फेवर्स देंगे ये लोग केएल राहुल को जबकि उसने कुछ भी नहीं उखाड़ा है एक्सेप्ट फॉर लूजिंग कॉजेस नॉक्स Mm. लूजिंग कॉजेस के अलावा तो भाई विनिंग कॉजेस में वो कभी खेलता ही नहीं है बंदे ने मतलब रट लिया है कि मैं लूजिंग कॉज में ही मारूंगा
मैं विनिंग कॉज में तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं टीम को जिताऊंगा ही नहीं। बोल तो दिया है बंदे ने तो मतलब। शिखर, मैंने क्या किया था, चार लास्ट 4 इयर्स के एवरेजेस निकाले, तो केएल से ही शुरुआत करते हैं। हम्म यू कैन सी केएल का एवरेज इज लोएस्ट। हम्म इवन अक्सर हैज बेटर एवरेज देन हिम, जडेजा हैज बेटर एवरेज देन हिम, हम्म Kohli with he has one of the most lean patches in his career. He has better average. Even हम्म Gill has better average. You can see KL हम्म 33 का average in last 4 years. अरे ये तो सर्वाइवलिस्ट है ना, सर्वाइवल मोड में है भाई। ये ओपनर था पहले, ओपनर एज अ ओपनर फ्लॉप हो गया, बस 2 इनिंग्स लोग याद रखते हैं। एक उसने लॉर्ड्स 129. ओवल में जो मारा, हाँ मार दिया, ठीक है भाई, उसके बाद सीरीज तो नहीं जीता पाया ना। हाँ. और वही इनिंग्स याद रखते रहेंगे बार बार, और उसी के बेसिस पे उसका 4 साल तक फिर उसको ड्रॉप किया एज एन ओपनर, तो मिडिल ऑर्डर में आ गया वो। या मतलब यार ये तो उसी साल में सर्वाइवल शिखर मोड है एक और मतलब। सेंचुरी था उसका साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टेस्ट में, और वो सीरीज भी इंडिया हार गई थी. हाँ वो सीरीज भी इंडिया ड्रॉ किया, मतलब हार नहीं गई, बट वो भी लूजिंग कॉज में ही था। हाँ. उस वो भी नहीं, वो जो सीरीज हम 100 हार था। गए थे शिखर, फर्स्ट टेस्ट जीतने के बाद हम बैक टू बैक 2 टेस्ट हारे थे, बहुत शॉकिंग डिफीट थी. हाँ हाँ हाँ, वो सीरीज हाँ. भी हम हार गए थे, राइट, पहला वाला जो था उसका। या. या लास्ट साउथ अफ्रीका टूर। तो ऑफ कोर्स मतलब कि विनिंग कॉज में तो कुछ हंड्रेड्स ही नहीं बन रहे उससे, हम्म. तो ये सब ऐसे ही स्टैट्स रहेंगे। और इंडिया तो ज्यादातर मैच जीतती है, और वो विनिंग टीम का पार्ट रहता नहीं है। हैदराबाद में भी उसने जो फालतू 83 अपने बनाए, वो लूजिंग कॉज में थे। वहां भी वो नहीं बचा पाया, जब बांग्लादेश में हमें जरूरत थी तब श्रेयस अय्यर ने बचाया था वो मैच। हम्म. तो मतलब यही सब और उसमें शायद मुझे याद है वो कैप्टन भी था एक मैच में, जिसमें हाँ. उसने कुलदीप को ड्रॉप कर दिया था। ऐसा कुछ हुआ था बांग्लादेश में, जो हम्म. सीरीज श्रेयस अय्यर ने बचा ली थी। हम्म. तो ही इज बिन ऑलवेज विद दैट नेगेटिव माइंडसेट, सेल्फ प्रिजर्वेशन, यही या. सब चीजें उसके दिमाग में, तो कहाँ से वो इम्पैक्टफुल नॉक्स खेल पाएगा। एंड अपने रन्स भी बनाता तो एवरेज 33 क्यों है, मतलब मैं तो हम्म. ये बोलना चाहता हूँ लोगों से कि क्या है 33 एवरेज। अगर तुम ओपनर भी बने हो, मिडिल ऑर्डर, कहीं तो तुम सक्सेसफुल होगे, कहीं तो नहीं, तुम्हारा इंडिया का एवरेज 40 प्लेयर के लिए क्रॉस करेगा। 33 एवरेज तो बहुत बहुत कम है. अरे सरफराज को लाओ यार, जुरेल को लाओ यार, ये लोग को लाओ, और मुशीर अक्षर को को लाओ भाई, खिलाओ। इंद्रजीत को ले आओ इसकी जगह. इंद्रजीत भाई कितना कंसिस्टेंटली इंद्रजीत को परफॉर्म लाओ, कर रहा है. मुशीर को लाओ यार, क्या केएल पे अटक गए हैं, तुम्हारी सुई अटक गई है केएल पे, उससे आगे ही तुम नहीं बढ़ पा रहे हो जिंदगी में। मतलब वही देख के दुख लगता है यार, बहुत चल दुख यार. लगता है मुझे। चलो, मैंने इसको शिखर, आई एम कॉलिंग दिस क्लैश ऑफ एशियन जायंट्स, बिकॉज मैं पाकिस्तान वाली सीरीज के बाद बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा हूँ बांग्लादेश को लेके, बट दैट्स द काइंड ऑफ क्रिकेट दे हम्म हैव प्लेड. So, Shikhar, हम्म surprisingly, I mean, not surprisingly anymore, Rohit Sharma has scored the most centuries for India in the last या 4 years, and it is या 6 Test centuries. हालांकि हम्म यशस्वी has scored 5 in just a हम्म year and a half, so he will या definitely surpass that six number. But yeah, Rohit Sharma last 4 years average of 44, हम्म and जो सबसे अच्छी इसकी 100 है मुझे लगता है शिखर, वो 161 against England in the last to last series जो चेन्नई में यस मारी थी, यस यस like completely. चेन्नई में मारी थी, फिर उसने इंग्लैंड में भी 100 मारा हुआ था, जो इंग्लैंड में इंडिया जिसमें केएल राहुल ने भी 100 मारा था। तो ही हैज हैड सम गुड नॉक्स रोहित शर्मा। और ऑस्ट्रेलिया में नागपुर में जो पहली टेस्ट में उसने 100 मारा था, दैट वाज आल्सो स्पेशल ऑन अ इन अ Yeah. लो स्कोरिंग टेस्ट मैच। तो आई थिंक रोहित शर्मा, देख मुझे क्या लगता है, इंडिया की बैटिंग दो प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है, वो है रोहित शर्मा और एक है ऋषभ पंत। Yeah. बाकी प्लेयर्स आई थिंक आइदर आउट ऑफ फॉर्म है। लास्ट टाइम गिल ने थोड़ा बहुत ठीक किया, बट मोस्टली जुरेल और जायसवाल ने ही बचाया। Hmm. और अब है रोहित यशस्वी, लिटिल बिट आउट ऑफ टच नाउ। रोहित यशस्वी, इन Yeah. दोनों को, बांग्लादेश को ओपनर्स को आउट करना है बस। बांग्लादेश का काम है कि ओपनर्स को आउट करना। ऋषभ पंत वैसे भी बहुत दिनों बाद आ रहा है टेस्ट मैच सीन में, वी डोंट नो भाई, कि वो कैसा रहेगा। you're ठीक absolutely है, right. मिडिल ऑर्डर बहुत मतलब अनप्रडिक्टेबल रहेगा इंडिया का, क्योंकि गिल, स्कोर नहीं कोहली, करता, पंत मिडिल एंड ऑर्डर केएल. रहेगा भी तो क्या है, खड़े भी हो जाए तो दे विल नॉट स्कोर। देयर इज नो अजिंक्य रहाणे नाउ जो फास्ट स्कोरिंग या. करके टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। ये लोग सब तो अटके रहेंगे वही पिच पे डिफेंस कर करके, एक बॉल ऐसी आएगी जो आउट हो जाएगी। यहाँ पे तो देखना है कि कोच का माइंडसेट क्या रहेगा, क्या वो अक्सर को मिडिल ऑर्डर में भेज सकते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा अगर वैसा कुछ होता है तो. हाँ वो इंटरेस्टिंग रहेगा, बट मुझे लगता है ये लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके जाएंगे बांग्लादेश को। हम्म. ये लोग बोलेंगे बिना अक्सर के ही हमारी बैटिंग ऑर्डर नंबर 8 तक है। और हाँ है भी, नंबर 8 तक तो हमारी बैटिंग ऑर्डर है ही। या. एंड वी विल मैनेज विदाउट अक्सर, ऐसा ये लोग बोलेंगे। एंड दे विल नॉट प्ले अक्सर, दे विल प्ले कुलदीप, बिकॉज दे विल थिंक कि
we need to get them out. Not they that can. हाँ Kuldeep has हो been सकता है. averaging 18.5 in the last 4 years, so they can definitely use Yeah. him. He's a great option. I And know I have not continuity. mentioned Kuldeep in my 11 because I thought they will play Aksar, but yeah, Kuldeep can definitely play. Actually, on merit, he might be better than some of our spinners, so he can definitely या play. कंटिन्यूटी पर्सपेक्टिव भी है ना, क्योंकि कुलदीप प्लेड दैट इंग्लैंड सीरीज, बेसबॉल का जो सीरीज चल रहा था Yeah. उसमें कुलदीप प्लेड ऑल द टेस्ट मैचेस, तो ही आल्सो इम्प्रूव्ड हिज बैटिंग आल्सो. Hmm. कुलदीप तो मुझे लगता है उस कंटिन्यूटी पर्सपेक्टिव से ही विल बी द थर्ड स्पिनर. बट अगर अक्सर को खिला देंगे इट विल बी अ ब्रेव कॉल, मतलब कि Yeah. इट विल बी अ ब्रेव कॉल, बट मुझे लगता है वो एक डिफेंसिव कॉल रहेगा, क्योंकि कुलदीप इज द मोर अटैकिंग ऑप्शन विद द बॉल. तो Yeah. इसका मतलब ये है कि आपकी थोड़ी फट रही है बांग्लादेश से भी, अगर आप अक्सर को खिलाते हो यहाँ पे, Hmm. तो ये समझ आ जाएगा. But Aksar has also averaged 19 in the last 4 years and with bowling, so I'm very impressed. I think it might have been to do something with और India is making a lot of spin tracks, so definitely he's played more at home. और बिग टर्निंग ट्रैक्स में अक्सर बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वो स्ट्रेटर वन डालता है ना, तो लोग समझ नहीं पाते हैं उसकी स्ट्रेटर वन को. Yeah. जैसे उसने रजत पाटीदार को भी अभी आउट किया था दुलीप ट्रॉफी मैच में, तो Hmm. वो कट करने जा रहा था, उसको पता ही नहीं चला कि स्ट्रेट बॉल घुस गई और बोल्ड हो गया वो. तो उसके स्ट्रेटर बॉल्स नहीं पड़ पाते लोग जब बिग टर्निंग सरफेस होता है. तो मुझे Hmm. लगता है अगर ये दोनों चेन्नई और कानपुर के पिचेस में थोड़ा भी ज्यादा स्पिन रहे, तो अक्सर को खेलना Yeah. चाहिए. आइडियली अक्सर शुड प्ले एज अ थर्ड स्पिनर अहेड ऑफ कुलदीप. एंड देन इंडिया के टॉप ऑर्डर पे थोड़ी नजर डालते हैं तो यशस्वी मैन 200 मारे थे इंग्लैंड के हम्म. अगेंस्ट एंड ही इज एवरेजिंग 69 इन टेस्ट क्रिकेट सो ही इज आर हम्म. कमिंडू इवन बेटर देन कमिंडू एज वी नो. देन गिल का 36 का एवरेज है. इंटरेस्टिंगली शिखर गिल ने एक 100 मारा था बांग्लादेश में हम जब गए थे सीरीज में, तो फर्स्ट टेस्ट में उसने हाँ. जितवाया था. एंड हाँ. तो देखते हैं अभी गिल कैसा खेलता है. उसने इंग्लैंड की सीरीज में भी 200 तो मारे हैं, लेकिन हमें पता है कितने मौके मिले और कुछ ड्रॉप कैचेस की वजह से मारे हैं. तो देखते हैं गिल कैसा हाँ कर राइट. पाता है इसमें. नहीं, गिल का वो जो तू बांग्लादेश वाला 100 बोल रहा है वो तो इरेलीवेंट हो गया, बिकॉज दैट केम एज एन ओपनर एंड नाउ ही इज नॉट एन ओपनर. राइट. ही इज कंफ्यूज्ड नाउ. दुलीप ट्रॉफी में ओपनिंग कर रहा है, कहीं पे नंबर 3 पे आ रहा है, फिर मतलब अभी तो कुछ पता नहीं है. तो अब वो नंबर 3 खेलेगा. एंड मुझे नहीं लगता वो लास्ट टाइम इंग्लैंड के लिए इंडिया ने टर्निंग ट्रैक सिलेक्ट नहीं किए थे, मतलब जो भी वेन्यूज थे, वाइजैक, धर्मशाला, राजकोट, वो इतने ज्यादा टर्निंग हाँ, नहीं थे. स्क्वायर टर्न नहीं हो रहा था एटलीस्ट. यस. हाँ स्क्वायर टर्न नहीं हो रहा था, बट वहां पे ही वॉज एबल टू स्कोर. बट अभी चेन्नई और कानपुर ये नेचुरली टर्निंग वेन्यूज हैं, जहाँ पे हिस्ट्री है, मतलब कि हिस्ट्री सजेस्ट दैट देयर विल बी सम टर्न एंड बाउंस या एंड स्पिनर्स विल बी मोर डेंजरस. वहां पे गिल देखते हैं कैसा खेल शिखर पाता है. कानपुर में पेसर्स को भी मदद मिल सकती है क्या? मुझे याद है डेल स्टेन का जो लेजेंडरी परफॉर्मेंस था वही था ना. कानपुर में नहीं था, आई थिंक अहमदाबाद. हाँ कानपुर में भी उसने अच्छा किया था. हाँ. मिल तो सकती है एक्चुअली. अभी इंडियन नॉर्थ इंडिया में जैसे वेदर कंडीशंस चल रहे हैं ना, तो इट्स बिट ओवरकास्ट एंड सरप्राइजिंगली सितंबर में भी बारिश हो रही है. जैसे हमने ग्रेटर नोएडा वाला टेस्ट मैच देखा, वॉश आउट हो गया अभी. या तो इट कैन हैपन कि मतलब कि पेसर्स को थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से मदद मिल जाए. बट पेसर्स में तो हमारे ज्यादा अच्छे हैं, इवन दो ऑल रिस्पेक्ट टू नाहिद राणा एंड या ऑल द पेसर्स. या बट पेसर्स में इनएक्सपीरियंस है बेसिकली. जैसे देख सकता है यहाँ पे स्क्रीन पे हसन महमूद ने सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, नाहिद राजा ने भी सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं. हम्म. सो ये प्रॉब्लम है. एंड मुझे ऐसा लगता है शिखर अभी तस्किन को ड्रॉप करके तैजुल को डेफिनेटली ऐड करेंगे चेन्नई में, स्पेशली चेन्नई में. मुझे लग रहा है तीनों हाँ. स्पिनर्स खेलेंगे, लिट्टन, मेहदी और तैजुल. एंड इनका मेन एम होना चाहिए रोहित और यशस्वी को कैसे आउट करे. अगर यस. रोहित और यशस्वी रह गए तो मैं श्योर हूँ इंडिया 2-0 दोनों मैचेस इनिंग से जीत जाएगी. हाँ वो तो श्योर है. लेकिन अगर रोहित और यशस्वी आउट हो गए तो बाकी देख, कोहली तो लंदन से आ रहा है भाई, वो पता नहीं कैसे, मतलब कि अभी हर्षा भोगले भाई, ने. लेकिन आज तक पे ऐसी न्यूज बन के आ रही थी कि कोहली ने 45 मिनट धूप में नेट प्रैक्टिस करी. बेसिकली इन लोगों का 6 दिन का ट्रेनिंग कैंप है अभी, तो ये लोग थोड़ा हाँ. प्रैक्टिस कर रहे हैं. बट हाँ. भाई 45 मिनट की प्रैक्टिस और वहां लंदन से आ रहे हो, मतलब कितना होगा 45 मिनट का प्रैक्टिस? इनफ होगा? वो देखना पड़ेगा. अभी पता नहीं, क्योंकि लंदन से आप आ रहे हो, आपको आइडियली तो दुलीप ट्रॉफी का मैच और खेलना चाहिए था. हाँ, और ठीक है. पेंडेमिक से कोहली ने सिर्फ 2 सेंचुरीज मारे और दोनों फालतू सेंचुरीज थे. एक वेस्ट इंडीज में था और एक वो अहमदाबाद के पिच पे जो हाँ 185 तो उससे राइट. बनवाया था, वो तो उसके लिए बनाया था, वो उसका जिंक्स तोड़ने के लिए. तो हाँ उन वो सेंचुरीज की तो. वजह से कोहली का एवरेज 36 आ रहा है यहाँ पे ऑन पेपर, बट हमें पता है वो 20s में था 2020 से 2022. तो
हाँ ऑब्वियसली, मतलब ही हैड अ टेरेबल टेस्ट। मतलब अभी तो तू देख ले, रूट, विलियमसन, स्मिथ, सब लोग उसको ओवरटेक कर गए ना। मतलब ही हैड सच अ बैड फेस, ही वाज अहेड ऑफ एवरी वन ऑफ देम एक्सेप्ट मे बी स्मिथ के साथ लेवल था। या बट नाउ ही इज बिहाइंड एवरीवन। और एंड लास्ट एंड 4 इयर्स ही के इज, स्टैट्स देयर में आर रोहित बिग एंड क्वेश्चन यशस्वी के मार्क्स। बाद पंत के 5 सेंचुरीज हैं, लाइक गिल, कोहली, हाँ, केएल, ये सब लोग स्ट्रगल किए भाई। and there are big question marks on how Kohli will be able to play spin, because Bangladesh में भी he या struggled या last time Taijul के against, Taijul dominated Virat Kohli last time। टाइटल इज वेरी तो क्राफ्टी। हाँ, तो देखना पड़ेगा कि इस बार कैसा रहता है, मतलब कि अगेंस्ट स्पिन वेदर ही कैन यू नो कैन टैकल दैट ऑन टर्निंग पिचेस एंड, तो ये सब चीजें हैं कोहली का, हमें देखना पड़ेगा। पंत एक ही लेफ्ट हैंडर है अगेन, अपार्ट फ्रॉम यशस्वी, तो um, मुझे लगता है कि मेहदी हसन मिराज का ज्यादा रोल नहीं रहेगा। ऑल्दो मेहदी हसन मिराज हमने देखा कि वो राइट हैंडर्स को भी बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, बट मेनली उसका शान मसूद और साउथ शकील के अगेंस्ट रोल था। बट अभी क्या है कि दो ही लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो देखते हैं कि मेहदी वर्सेस पंत, दैट में टर्न तीन आउट है टू ना बी अ वैसे, ग्रेट पंत, बैटल। जडेजा एंड अक्सर। आई मीन अच्छा, तू अज्यूम कर रहा है हाँ कुलदीप विल प्ले। जडेजा भी है, राइट, हाँ जडेजा भी है, हाँ हाँ। सही बात है, जडेजा भी है। जडेजा एंड तो जडेजा बोर का ही भी करेगा बहुत अच्छा यार। बैटिंग एवरेज रहा है अभी रिसेंटली, 37 का एवरेज चल रहा है लास्ट 4 साल में, या तीन ही इज सेंचुरीज ब्रिलियंट। तो। एक्चुअली देखा जाए तो लास्ट 2-3 साल में पंत के अलावा कोई बैटिंग में अच्छा रहा है, पंत और रोहित के अलावा, तो वो जडेजा ही है, जिसने हम्म। इंडिया को बहुत बार, इंडिया की नाक बचाई है लोअर ऑर्डर के साथ या फाइट करके। तो एक और चैलेंज रहेगा कि रोहित यशस्वी को आप अगर आउट भी कर लो, तो पंत तो फिर भी मुझे लगता है उसका भी कंसंट्रेशन पावर्स पीक पे नहीं है। अगर आप देख लो तो मेनली रहेगा कि जडेजा को आप कैसे आउट कर हाँ, सकते हो। मुझे ये लग रहा है ऊपर से रोहित और यशस्वी और नीचे से अगर अक्सर खेला तो अक्सर एंड जडेजा, जडेजा, मुझे यही लग रहा है। अक्सर एंड जडेजा। बीच में यू कैन हाँ, रियली रन थ्रू, इवन दो इट्स इंडिया, यू कैन राइट, रन थ्रू। राइट, राइट, राइट। या दे कैन रन थ्रू इंडियाज मिडिल ऑर्डर फॉर या श्योर। एंड देन ऑब्वियसली वी हैव बुमराह, द लेजेंडरी बॉलर मैन, 21 का एवरेज, दिस इज रियली स्टफ ऑफ लेजेंड्स। 5 times 5 wickets he has taken in the last 4 years. So he's really the GOAT bowler, and Bangladesh will be fearing him, especially when both या of their openers average around 30. That is very poor in Test cricket. So now looking at Bangladesh's side, this is the problem: the top order. Zakir Hassan averaged 31, Shadman 26, Shanto 28, Mominul 34. So all of these four aren't averaging much. Then you have Mushfiq and Litton averaging 45 plus. Those are the two good batters. And then Shakib hasn't scored a test century since 2017. तो उसके जो भी परफॉर्मेंस आए वो वनडे क्रिकेट में आए हैं, और शाकिब को टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा स्कोर पता नहीं क्यों नहीं बना पा रहे, क्या दिक्कत है नहीं, उनको। हमने तो पहले बोल दिया था शाकिब शुड नॉट बी इन द, शाकिब शुड नॉट बी प्लेइंग इन द 11। या ही वाज वो रॉन्ग, स्टार ही वाज अ स्टेटस की वजह से रॉन्ग, खेल रहा है भाई। he was a wrong selection even for Pakistan tour, but now या they are persisting with him। बट यहाँ पे वही होगा कि हाउ दे कैन हैंडल बुमराह एंड सिराज एंड आकाशदीप, बिकॉज आई थिंक आकाशदीप भी जब खेलेगा सेकंड टेस्ट में, तो आकाशदीप विल बी ही विल बी फायर। डेंजरस। या हाँ, सो फिकर मेरा एक्चुअली मन है इंडिया सरप्राइज करे, सिराज की जगह आकाशदीप को खिलाए, बोले सिराज को तुम दिलीप ट्रॉफी नहीं खेले थे, जाओ बैठो एक मैच। अरे इनका यार वही सिस्टम है ना इनका, वो पंचायत वाला सिस्टम है हाँ कि जब भी कोई वापस आएगा तो वही रहेगा। हाँ, वो तो है। वो नया प्लेयर चाहे कितना भी उखाड़ ले, वो जो पुराना प्लेयर आएगा वो रहेगा। अभी साला जुरेल और सरफराज ने इतना उखाड़ा वो हाँ इंग्लैंड सीरीज में, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब यस, ये इट्स कोहली वेरी वापस आ सैड गया। एक्चुअली। पैटर्निटी लीव सब तुम्हारा, सब कुछ, मतलब ये गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है भाई इंडियन क्रिकेट में, तो तुम्हारी और कोई नहीं है भाई, कुछ नहीं, तुम्हारा कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। केएल का तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, इतने मैचेस बड़े बड़े में उसने हरा दिए हैं, लेकिन उसका कुछ कर नहीं पाए हम, उसको अभी तक कैरी करना पड़ रहा है। साला वो ओपनर से मिडिल ऑर्डर आ गया, अभी लोअर ऑर्डर बन जाएगा, कीपर बन गया, अभी बीच में बोलोगे बॉलर हूं मैं, मुझे टीम में बस रख लो, मेरी नौकरी बचा लो, तो उसको वो भी दे देंगे केएल राहुल को। तो कभी यही चलता रहेगा इंडियन क्रिकेट में यार, मतलब दैट्स व्हाई दे नीड टू हैव अ शॉक दिस ईयर। एंड आई मतलब थिंक कि शौक के लिए मुशफिक को बड़ा इनिंग्स खेलना पड़ेगा यार। भाई ही इज बीन प्लेइंग टेस्ट हाँ, क्रिकेट सिंस 2005, ही इज लाइक सीरियसली सो हम्म, ओल्ड। एंड उसका जो वो हम्म,
उसने लास्ट 4 इयर्स में एक 175 नॉट आउट का नॉक खेला है, अभी रिसेंटली 191 में पाकिस्तान के अगेंस्ट। सो ही इज वन हम्म। गाय हु नोज हाउ टू बैट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, बिकॉज उसने ट्रेडिशनल क्रिकेट खेला है एंड ही हैज राइट। बीन देयर थ्रू आउट बांग्लादेश हिस्ट्री। तो ही हैज टू स्टे एट द क्रीज। एंड शांतो भी एक वियर्ड प्लेयर है शिखर, यू लुक एट दिस प्रोफाइल इन हम्म। लास्ट 4 इयर्स, ओनली 28 एवरेज बट 500, सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ हम्म। प्लेयर, इधर हिट और अ मिस। तो या। शांतो का भी अगर चल जाए थोड़ा तो हम्म। इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड शांतो इज ड्यू फॉर अ बिग वन। मतलब पाकिस्तान सीरीज में तो उसने कुछ किया नहीं, खाली सबको हाँ। क्रेडिट देता रहा, भाई भाई दिस शाकिब मुशफिक भाई, लिटॉन भाई, सबको खाली क्रेडिट देता रहा। बट खुद उसका हाईएस्ट स्कोर 38 था, जो कि उस लास्ट इनिंग्स में आया वो भी। या तो देर इज वो समथिंग भी बिग टू विनिंग बी पोजीशन। एक्सपेक्टेड फ्रॉम शांतो। एंड जाकिर हसन ऑल्सो वाज डिसअपॉइंटिंग इन पाकिस्तान टू। तो या मुझे लगता है अभी इन दोनों प्लेयर्स को दे हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। दे यप। कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन, मतलब कि लोअर मिडिल ऑर्डर टू पुट अ फाइव। ये लोग या न्यूजीलैंड नहीं है 2005-6 के, जहां पे मैकलम और विटोरी से ही बैटिंग ऑर्डर शुरू होती थी। ऐसा नहीं खेल सकते। ऐसा नहीं कि लिटोन और मुशफिकुर ही खेलेंगे, बाकी तो चार ऐसे ही आउट होंगे। तो बुमराह विल नॉट अलाउ दैट ना, बुमराह तो रन थ्रू कर देगा बाकी लोगों को भी। या तो मे बी इनको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है बैटिंग ऑर्डर में, मे बी पुट मुशफिक ऑन 3 या एंड लिटोन ऑन Mehdi 3 Hasan can 2। also be tried up in the order. So last राइट। three test scores of Mehdi Hasan are 81 not out, 79 and 78. Three हम्म। 380 scores basically in a row. So he's still the number 8, but he can be better than that, I think. या ही इज वन ऑफ द क्लास ऑलराउंडर्स। मुझे तो लगता है ये सीरीज में एक्चुअली वी विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि मेहदी हसन वर्सेस पंत इज वन डायरेक्ट बैटल, बट Yeah. ऑल्सो मेहदी हसन वर्सेस रविंद्र जडेजा एज एन ऑलराउंड बैटल। Oh, ऑलराउंडर्स का बैटल, दैट विल बी ग्रेट, विल yeah. हैव लॉट ऑफ फन सीइंग। शाकिब और अश्विन वो भी चलेगा एक। बट मुझे देखना है मेहदी हसन क्या स्टेप अप कर पाता है। बहुत मतलब कि ये एक बिग सीरीज है बांग्लादेश के लिए, बिकॉज दे आर हैविंग दैट मोमेंटम। और इस मोमेंटम पे उनको कैपिटलाइज करना चाहिए। एटलीस्ट दे शुड गिव अ प्रॉपर फाइट टू इंडिया, इवन इफ दे लूज 2-0। They should make India earn that 2-0, and it should not be an easy 2-0. That's what you want to uh, see. Absolutely. हाँ हाँ। एंड इंडिया के ने तो जो अपने प्लेयर्स गलत सिलेक्ट किए हैं उसकी वजह से वो एक मैच हारना ही। अभी तो बांग्लादेश है, लेकिन ये न्यूजीलैंड होती तो एक टेस्ट मैच तो ये लोग हार ही जाते। बट Hmm. स्टिल लेट्स सी ये बांग्लादेश कैन डू समथिंग स्पेशल। और पिचेस भी अच्छे मिल रहे हैं उनको, चेन्नई मिल रहा है, चेन्नई में Yeah. हो भाई सकता है यार पाकिस्तान कुछ। का टेस्ट क्रिकेट जिस तरह से तेजी से खत्म हो रहा है, एंड देन श्रीलंका ने जो डिसअपॉइंट किया हाँ। इंग्लैंड में, उसके बाद बहुत उम्मीद है कि बांग्लादेश एटलीस्ट एक और एशिया से टाइगर राइज हो। एंड या और एंड मैंने जितना भी चेन्नई में क्रिकेट देखा है ना प्रतीक, फ्रॉम बचपन, मतलब कि बचपन में हम सचिन को राइट। देखते थे मारते हुए। फिर हमने वो 387 का चेज देखा जिसमें सहवाग पागल हो गया था। उसके बाद हमने अश्विन का एक 100 देखा था इंग्लैंड के अगेंस्ट ऑन अ टर्निंग ट्रैक। जो रूट का डबल 100 देखा था। जो भी फास्ट खेलता है ना यहाँ पे वो सक्सीड करता है। तो मुझे नहीं लगता कि पंत और यशस्वी और रोहित के अलावा हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं हु कैन प्ले एट अ हायर स्ट्राइक रेट। क्योंकि चेन्नई में मैंने देखा है कि हायर स्ट्राइक रेट नॉर्मली डिलीवर्स यू द विन। धोनी का 224 देख लें, धोनी ने ओ एक या। बार 224 रन मार दिए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ऐसा पिच है चेन्नई में कि यू हैव टू अटैक अ लॉट। बट हमारे पास है नहीं अटैकिंग बैट्समैन। लिटॉन और उनके पास ज्यादा है, लिटॉन है, मोमिनुल है, मेहदी है। शाकिब भी थोड़ा अटैकिंग ही खेलता है। हम्म। हम्म। एंड शिखर, विल यू प्ले हसन महमूद एंड नाहिद राना, और विल यू गो विद द तास्किन अहमद, लाइक व्हाट डू यू थिंक? whoever is fit I will go with that, but Taskin अभी थोड़ा क्या लग रहा है, मतलब ही इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट इवन इन द लास्ट टेस्ट मैच। ही इज नॉट लुकिंग एट हिज पीक। एंड He's coming from injury, looks doesn't look 100%. बट Yes. क्या है कि पेस भी मैटर करता है अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन। पेस भी मैटर करता है। Yeah, Naid Rana might be the fastest bowler in this series if he plays, because बट Bumrah is तास्किन not इज द clocking over सेकेंड फास्टेस्ट। 145. Yeah. हम्म। तो नाहिद, तास्किन एंड एनीवे शोरीफुल तो नहीं है ना, तो इनको हाँ मुझे लगता है ताइजुल दो ही पेसर्स खिलाएंगे ये हाँ, तो हसन मे बी। महमूद एंड नाहिद राना आई थिंक, एंड देन 3 spinners. हाँ राइट। सेम इंडिया जैसा, सेम या उसमें से भी 2 अच्छे राइट ऑलराउंडर हैं वैसे ही या। राइट राइट। बट टफ कॉल, इट्स अ टफ कॉल बिटवीन तास्किन एंड हसन या महमूद। It's a really tough call, but
I think अगर इस they सीरीज में जाकिर हसन टॉप से डिलीवर कर देना तो काफी अच्छा हो सकता है बांग्लादेश के लिए. ही I विल बी think द मुझे मैन लगता है टू they वॉच. should, if Taskin is fully fit, they should just go with Taskin because विकेट pace टेकिंग एबिलिटी है. हम्म. pace matters in India on dead flat pitches. When you don't have swing, you have to bowl short ball barrage. So you have to do all those kind of things. So I think pace matters, and India also are taking two express paces. So why not Bangladesh? या They should also take two express pace. शिखर, लास्ट टाइम विराट थोड़ा गुस्सा हो गया था एक बार सेकंड टेस्ट मैच में. बांग्लादेश ने बहुत सेलिब्रेट किया था जब विराट आउट हुआ था. तो एक ये छोटा सा पिक्चर भी है बैकग्राउंड में. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट शाकिब उसको Hmm. समझाने आया था इट्स ओके, और विराट ऐसा पूरा उंगली दिखा रहा है कि ये क्या कर रहा है. Hmm. तो वो भी शायद इंटरेस्टिंग होगा. एंड विराट का वो बहुत अच्छा है रिकॉर्ड, एंड शायद बांग्लादेश का नहीं, वहीं से टेस्ट ये क्रिकेट की दोनों शुरुआत भी तो की थी. शाकिब और विराट तो बहुत एक्सप्लोसिव कैरेक्टर्स हैं, हम्म. बट दे आर गुड फ्रेंड्स, तो दैट इज व्हाट. एंड वैसे विराट का तो बांग्लादेश टीम में सबसे बेस्ट फ्रेंड तमीम इकबाल था, जो हाँ. है ही नहीं. But Shakib and Virat are good friends, but they are both explosive characters. So या anything शाकिब can भी happen in रिसेंटली this series. रिजवान को बॉल मारने वाला था. Anything can happen in this series only if Bangladesh start dominating. तो तब हम्म. मजा आएगा, तब वो लोग भी sledge करेंगे. They will also start sledging, and it will be a fun series. It will be lot of fire, lot of nails, lot of grudge in this series. It या. can be potentially one of the best test series. Actually, it's a two test match series, so it will not be best, but still, it can be a very interesting two test matches actually. If Bangladesh start competing, only then. या. Otherwise, even as Indian fans, we want to see a challenge. Obviously, we want our team to win, but we want to see a tough challenge, like how we get in Australia, England, South Africa. At our home conditions, the truth is we have not lost a series since 2012, या. uh, and no team has even come close. I don't think, except for Australia, winning that 2017 Pune Test match, यस. and they actually shocked us. No team has really come close to win a Test series. So we want to see a good series like that 2017 Australia series at least. That kind of series. Yeah, definitely. And I think Chennai is a very good venue. Both teams will enjoy Hmm. bowling there. There's with the good spinners they have. But Hmm. yeah, there are actually many match winners from both sides. Maybe India has more, but Hmm. this series can be very interesting. And what would be interesting is Bangladesh know that they have good record in ODI cricket. Like they beat India in Asia Cup, they beat India in that ODI series at home. Yeah, So can they just, if they have such good command over India in ODI format, but not in T20, they keep losing T20s to us. That means Test will be a more kind of a venue of a format where they can actually correct. dominate or have some kind of Yeah. competitiveness. So वो देखते हैं कि क्या they can do that, or will भाई India. चौथे पांचवें दिन तक uh, मैच जाएगा तो भी दैट्स अ वेरी गुड थिंग. तो that's एंड a बहुत very, that will एक्सपीरियंस be. भी बांग्लादेश की टीम में. मैं देख रहा था सभी. लिट्टन भी शायद Hmm, 2015 से खेल रहा है. देन ताइजुल 2014 से खेल रहा है. एक्चुअली देयर hmm, साइड इज एज एक्सपीरियंस्ड एज आवर साइड. hmm, दोनों में तीन चार नए चेहरे हैं इन द बैट्समैन, लाइक कुछ ईयर्स पुराने. बट bowling hmm. is where fast bowling is where they have more experience. India has more experience. I think India, अगर ये सीरीज 2-0 जीतती है, उसका ओनली रीजन विल बी फास्ट बॉलिंग, बिकॉज Hmm. आवर पेसर्स आर so much better than theirs. Yeah. So एंड ऐसा कई बार that हुआ है will जब be. हम पूरा सोचते हैं कि ये सीरीज स्पिनर्स की है, बट हमने देखा है कि हाँ, फास्ट बॉलर्स आके एक 3 विकेट का हाँ. स्पेल डाल देते हैं शुरू में, एंड देन दैट चेंजेस द मैच. जैसा ये टी लास्ट टाइम ट्वेंटी भी में हुआ था देखते हैं जब पावर प्ले. बांग्लादेश जैसे जब T20 में बांग्लादेश बैटर्स पावर हाँ. प्ले में खेल के मैच डिसाइड करते हैं, वैसे ही टेस्ट मैच में फर्स्ट सेशन में आप 3 विकेट ले लो जल्दी, एंड कई बार वही मैच डिसाइड हो जाता है. और इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसे ही हराया था 2019 में जब वो आए थे. तो इट वाज द पेसर्स दैट वर टेकिंग मोस्ट ऑफ द विकेट. शामी, बुमराह एंड आई थिंक मुझे सिराज, दे वही वर लग रहा है टेकिंग. जैसे श्रीलंका के साथ अभी जो इंग्लैंड सीरीज में हुआ, जो पहले दो टेस्ट मैच में देखा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देवर 80 for 6. आई थिंक वही एक तरीका है जिससे इंडिया 2-0 इंश्योर करेगा. जस्ट ब्लोइंग अवे द टॉप ऑर्डर ऑफ बांग्लादेश. तो वही एक स्ट्रेटेजी रहेगा इंडिया के पास डोमिनेट करने के लिए.
blowing away top order also, middle order is can be fragile. मतलब वो भी हो सकता है. शांटो, मोमिनुल एंड शाकिब, इनको आउट कर दो तो ये खत्म अभी पाकिस्तान मैच. में भी हुआ था ना 26 for 6 हाँ, तो एग्जैक्टली. या दैट 26 for 6 इज अ बिग इंडिकेटर कि इनकी टॉप मिडिल ऑर्डर बहुत बेकार है. इनका लोअर ऑर्डर से फाइट आता है हमेशा, हर मैच में. तो वो तो हमेशा तो नहीं हो सकता. अब मुशफिक और लिटॉन कितना बचाएंगे नंबर 6 और नंबर 7 से, और मेहदी नंबर 8 से. या ये हर बार थोड़ी ना होगा. तो एंड ऑल्सो फॉर इंडियन प्लेयर्स दिस विल बी वेरी गुड सीरीज बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा चैलेंज मिलेगा एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर न्यूजीलैंड एंड सीरीज एंड बीजीटी ऑफ कोर्स फ्रॉम दिस. तो एक्चुअली इफ यू सी, तो न्यूजीलैंड से इनको तो कायदे से बांग्लादेश शुड परफॉर्म बेटर देन न्यूजीलैंड इन इंडिया एटलीस्ट. At least they should, yeah, Bangladesh for these conditions they should be performing better than New Zealand. So this is more challenging series as for me than New Zealand, who या have Ajaz Patel as their spinner, करेक्ट. as their lead spinner. And Ajaz Patel से तो ज्यादा अच्छा spinners इनके पास है. तो why should Bangladesh be not more competitive than या New Zealand? Yeah, exactly. Right? And they are just playing a recent series where they performed so well. So they are the team who Hmm. has played Test cricket But recently. the Indian and Pakistan conditions are totally different. Here the Mm, ball will turn. There we saw no turn. In fact, mm, Pakistan went with all four pace attack, and then second match where they should have gone with all four pace attack, they didn't go there with all four pace attacks. But Indian pitches, obviously three spinners will play from both teams. That is a given. So Indian and mm. Pakistan pitches are very different. That they have to understand Bangladesh. Yeah, पहला दिन पहला टेस्ट ही ऐसा ना हो कि वो तीन पेसर्स खिला रहे हैं ये सोच के शान मसूद की तरह कि हम तो हमारी पेस बैटरी ने तो भाई पाकिस्तान को उड़ा दिया, अब तो इंडिया भी हमें उड़ा देंगे. ऐसा अगर सोच के वो आएंगे देन दे आर गोइंग टू लूज. सो yeah. स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल एंड इट हैज टू बी पिन पॉइंट. यू आई थिंक उनका कांट कोच बी. अच्छा है वो जो श्रीलंकन है हस्तरुंगा जो भी हथरु नाम है सिंह उसका. है. हाँ. एंड उनका जो बॉलिंग कोच है, आई एम फॉरगेटिंग, पहले तो एलन डोनाल्ड था बट अभी भी पहले उनके था हाँ. कुछ अच्छे अच्छे कोचेस हैं. सो देखते हैं क्या होता है. चलो बहुत इंटरेस्टिंग हम्म. पार्ट आ रहा है अभी टेस्ट क्रिकेट. 10 टेस्ट मैचेस हम्म. खेलने वाली इंडिया नेक्स्ट 5 महीनों में तो वो सुन के ही मुंह में पानी आ जाना चाहिए बिल्कुल. तो या दिस हम्म. सीरीज विल बिगिन दैट. सो वेरी वेरी एक्साइटेड हम्म. अबाउट दिस शिखर एंड सो थैंक यू फॉर द. रिसेंटली, मतलब मैं भाई वीकली रिव्यू में बताऊंगा, बट रिसेंटली I met a German guy when I visited the hotel of Afghanistan New Zealand team, and I told him that we play test cricket for 5 days. He was shocked knowing that. So भाई वो समझ ही नहीं पाया कैसे हो सकता है कि 5 दिन कोई खेले. मेरे तो ऑफिस में मैंने एक दिन एक्सप्लेन किया था अमेरिकन को. मैंने बोला इट्स काइंड लाइक ऑफिस मंडे टू फ्राइडे 9 to 5. uh, Yeah. I think that's it for today. Thank you Yeah. guys. Please subscribe our channel Cricket Caviar. We would love to have more comments from your end. Please support us and please subscribe our channel. And yeah, and Thank you thank you guys. for the views and comments, guys. Keep them coming. Yes. Thanks.